سینیٹر شبلی فراز کی نیوز کانفرنس۔ اپوزیشن کے سیاسی بلیک میلنگ میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ ایف اے ایس سی کے تحت نئی قانون سازی کرنا ضروری تھی۔ ستمبر میں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ ملکی خطرات کے باوجود اپوزیشن حکومت کو بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز۔ چین کے صوبے ہینان میں پاکستان چین اسٹریٹجک مذاکرات کا دوسرا دور۔ کرونا وائرس سے نمٹنے، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری ترقی کے دوسرے دور میں داخل، منصوبے پر کام جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور چین آئرن بردرز ہیں۔ چین علاقائی خود مختاری کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے، چینی وزیر خارجہ۔ ملک کی ترقی سائنس و ٹیکنالوجی کے فروغ سے وابستہ۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت نئے منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ۔ ملک کی نوجوان نسل میں بے پناہ صلاحیت موجود، مجوزہ منصوبوں کو جلد حتمی شکل دے کر کام شروع کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ ملک میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام لانے کی جانب اہم پیش رفت۔ ای سی سی نے پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن کو 2 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلا جہاز رواں ماہ کی 26 تاریخ کو پاکستان پہنچ جائے گا۔ نجی شعبے کی جانب سے چینی کی درآمد پر عائد محصولات کی شرح میں کمی لانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستانی معیشت بتدریج بہتری کی جانب گامزن۔ موڈیز اور فچ کے بعد ایس این پی نامی امریکی ریٹنگ ایجنسی نے بھی پاکستانی معیشت کی صورتحال کو بہتر قرار دے دیا۔ کورونا وبا نے پاکستان کے پہلے سے کمزور معاشی ڈھانچے پر مزید دباؤ ڈالا۔ عالمی سطح پر دباؤ کے نیچے آتے ہی پاکستانی معیشت بتدریج بہتر ہوتی جائے گی، ایس این پی ریٹنگ۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر میر حاصل خان بزنجو آبائی علاقے نال میں سپرد خاک۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں سینئر سیاستدان کو ملک اور جمہوریت کے لیے خدمات پر زبردست خراج تحسین۔ سینیٹ میں تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی، کورونا وائرس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ۔ جنوبی پنجاب میں علیحدہ صوبے کے قیام کی طرف اہم پیش رفت۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ریکارڈ قانون سازی۔ صوبائی حکومت کے نمایاں خدوخال ہیں۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی میڈیا بریفنگ۔ مقبوضہ کشمیر میں شان رسالت میں گستاخی کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ بی جے پی کے اقدامات نے ثابت کر دیا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 2 قومی نظریہ درست تھا۔ بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہونا قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کی توثیق ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ مسلمانوں نے پوری دنیا میں فتوحات حاصل کی۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کا پرچم سربلند کیا۔ سماجی تحفظ، پولیس اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لاہور میں اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اسلحہ، لاؤڈ سپیکر، وال چاکنگ اور فرقہ وارانہ مواد کی نشر و اشاعت پر پابندی برقرار رہے گی۔ سردار عثمان ملتا۔ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔
आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक। टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दामात। सैयद फखर इमाम की सरबराही में नेशनल लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम टीम का थरपारकर का दौरा। इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन का जायजा लिया। वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़ेर सदारत इजलास। मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। सूबाई नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। साउथहैम्पटन में तीसरे क्रिकेट टेस्ट का पहला दिन। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। सॉफ्ट रॉली की सेंचुरी। मुकाबला देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान के 17 खिलाड़ियों का ऐलान। हैदर अली, खुशदिल शाह और नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। T20 मैचेस 28 और 30 अगस्त के अलावा 1 सितंबर को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाज़िया कमल। स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। फिल वक्त रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरों का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मौसम बरसात में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। छतों की मुकम्मल सफाई, मरम्मत और नकासी आपका लाज़मी इंतजाम करें। नशेबी इलाकों, बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ज़ेर तामीर और मखसूस इमारात के साथ खुदाई हरगिज न करें। बच्चों को बरसाती नालों और गढ़ों में जमा बारिश के पानी में हरगिज नहाने न दें। बारिश में भीगे बरक़ी आलात और जमीन पर गिरी तारों को न छुएं। तुग़यानी की सूरत में दरियाओं के करीब क़तन न जाएं। बरसाती नालों को साफ रखें और इनमें कूड़ा करकट न फेंकें। फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ज़राए अबलाग के जरिए मौसम की सूरत हाल से आगाह रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें या PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर इत्तला दें। मानसून के साथ साथ कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल करें। हुकूमत पंजाब। और अब खबरनामे में शामिल तफसीली खबरें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि FATF आइंदा माह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या हटाने के बारे में फैसला करेगा। तफसीलात बता रहे हैं राहील अंसार। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन मुल्की खतरात के बावजूद हुकूमत को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ इलाज के बहाने बरतानिया गए और वहाँ एक एक्सरे भी नहीं करवाया। जो उनको जमानत मिली थी जब वो खत्म हुई और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो पंजाब हुकूमत ने उनसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी। जिस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी को एक बहाना बनाकर और मुल्क से फरार इख्तियार की, उनको वापस आना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये कोई वैसी नहीं है कि वो ऐसे ही कह देते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। NRO और क्या होता है? अब ये जो NRO है जिसको कहते हैं किससे दिया, वो ये है, ये वो मुसविदा है जो इन्होंने हमें भेजा है अपोजिशन ने, अब इसमें 37 पॉइंट में से वो कहते हैं कि 34 पॉइंट तब्दील कर दिए जाएं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि FATF के तहत नई कानून साजी करना जरूरी थी। कर्जों की भी जो शरह सूद है वो भी बहुत बढ़ जाती है। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में, लोग उससे कतराएंगे। इससे जाहिर है कि आपकी करेंसी पे भी प्रेशर पड़ेगा। उससे क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी और जितना भी जिस तरह से इस मुल्क को इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रखा गया है वो भी अपने जाती फायदे के लिए, तो उससे मुल्क में असल तकलीफ किसको पहुंचेगी?
वो आवाम को पहुंचेगी। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हर पॉलिसी का महवर गरीब आवाम की भलाई है, जबकि माजी के हुक्मरानों ने हमेशा अपने ज़ाती मुफादात के लिए पॉलिसियां अपनाई। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत इरसाल किया है, जिसमें मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे हारून इलाही तूर से। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत तहरीर किया है और इस खत में यह कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करेंगे खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए और पाकिस्तान और चीन को मुश्तरका दरपेश चैलेंजेस के लिए। इसी हवाले से हम आपको मजीद आगाह करेंगे कि पाकिस्तान और चीन ने अमन व खुशहाली और खित्ते में तरक्की के लिए मिलकर काम करने के इक़दामात पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दोनों मुल्कों ने बाहमी स्ट्रेटेजिक एतमाद में इजाफे, आला सतह तबादलों, ताआवुन मजबूत करने, बेल्ट एंड रोड मंसूबे में पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे के लिए अज़्म का इजहार किया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने की। तफसीलात नमरा सुहेल से। चीन के सूबे हेनान में होने वाले स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोरोना वायरस से निमटने, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन, खुशहाली और खित्ते में तरक्की के लिए मिलकर इक़दामात करने पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए पाकिस्तान और चीन ने तजर्बात के तबादले समेत मेडिकल सामान और दीगर शोबों में मिलकर काम किया और दुनिया के लिए मिसाल कायम की। दोनों मुल्कों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए भी मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और ताउन आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफीद है। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी पाकिस्तान और चीन समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी और खित्ते के ममालिक की बाहमी सलामती और तरक्की के लिए भी अहम है। पाकिस्तान और चीन ने वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों के कौमी मुफाद के लिए एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं और पाकिस्तान खित्ते में चीन का बेहतरीन दोस्त है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन इलाकाई खुदमुख्तारी की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी सलामती की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग के हवाले से चीन की हिमायत का अज़म दोहराया। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी तरक्की के दूसरे दौर में दाखिल हो चुकी है। मुज़ाकरात में कहा गया कि इक़्तिसादी और माशरती तरक्की, रोजगार के मौक़ों, अवामी फलाह, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, साइंस और टेक्नोलॉजी और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेगा। दोनों मुल्कों ने मेगा तवानाई मंसूबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर ताउन के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुरअमन ताउन पर मबनी और खुशहाली जनूबी एशिया के तमाम फरीकैन के लिए अहम है। तमाम फरीकैन खित्ते में तनाज़ात का हल बाहमी एहतराम और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के जरिए निकालें। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से चीन को भारत के गैर कानूनी कब्जे का शिकार मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में पुरअमन तरीके से मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के हल पर जोर दिया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान के तनाज़े के हल के लिए ताउन में इजाफे पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने अफगान हुकूमत और तालिबान की जानिब से अमन अमल के लिए काविशों को सराहा। चीन ने खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। इससे पहले चीन के सूबे हेनान पहुँचने पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फौरी खबर में आपको आगाह करेंगे कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत इरसाल किया है, जिसमें मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया है। आपको आगाह करेंगे कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत तहरीर किया है, जिसमें मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया है और कहा गया है कि चीन मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हारून इलाही तूर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हारून, बताइएगा, चीनी सदर ने खत इरसाल किया है, सदर मुमलिकत को मजीद क्या अपडेट्स हैं? ये मुनाजर
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایک خط لکھا تھا چین کے صدر شی جن پنگ کو سی پیک پر سیاسی جماعتوں کی جو دوسری کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے مبارکباد کا ایک خط لکھا گیا تھا صدر ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے چین کے صدر شی جن پنگ کو، جس کے جواب میں آج چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک مشترکہ مستقبل کی ایک دوستانہ کمیونٹی کی حیثیت سے آپس میں تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ چین کے صدر کا اس خط میں یہ بھی کہنا تھا کہ ہم مشترکہ طور پر علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین خطے میں امن اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چین کے صدر کا کہنا تھا کہ کورونا کے خلاف جو عالمی جنگ ہے اس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ باہمی حمایت، یکجہتی اور تعاون سے ہی کسی وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ چین کے صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین دو بھائی اور شراکت دار ہیں، ان کی دوستی لازوال ہے۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے سی پیک پر سیاسی جماعتوں کی دوسری کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر، وہ خط اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان کے صدر جو ہیں وہ چین کے ساتھ تعلقات کو اور سی پیک کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ چین کے صدر کا کہنا تھا کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے جو ہر آزمائش پر پورا اترنے والی پاکستان چین اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے بہت اہم ہے۔ صدر شی جن پنگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو سی پیک ہے اس سے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ مستقبل کے حوالے سے تعلقات جو ہیں وہ مزید مستحکم ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دوستانہ مشاورت کے عمل کو آگے بڑھاتی ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان سی پیک کے تحت جو طویل مدتی ترقی اور بیلٹ روڈ منصوبہ جو ہے وہ اس پر دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اتفاق رائے موجود ہے۔ جی بہت شکریہ ہارون الہی تور آپ کا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط تحریر کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مشترکہ مستقبل کے لیے چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور چین خطے میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ سی پیک منصوبہ دونوں ملکوں کے مستقبل میں مستحکم اور مضبوط تعلقات کا ضامن ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کپاس کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام۔ کپاس کی فصل پر بعض علاقوں میں ملی بگ کا حملہ مشاہدے میں آیا ہے۔ ملی بگ کا حملہ چند پودوں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے متاثرہ پودوں پر محکمہ زراعت کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے ہفتے میں 2 بار سپرے کریں اور متاثرہ کھیتوں میں پانی کی کمی بھی نہ آنے دیں۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔ موسم برسات میں جان و مال کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ چھتوں کی مکمل صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کا لازمی انتظام کریں۔ نشیبی علاقوں، بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ زیر تعمیر اور مخصوص عمارات کے ساتھ کھدائی ہرگز نہ کریں۔ بچوں کو برساتی نالوں اور گڑھوں میں جمع بارش کے پانی میں ہرگز نہانے نہ دیں۔ بارش میں بھیگے برقی آلات اور زمین پر گری تاروں کو نہ چھوئیں۔ طغیانی کی صورت میں دریاؤں کے قریب قطع نہ جائیں۔ برساتی نالوں کو صاف رکھیں اور ان میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں۔ فلیش فلڈنگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے موسم کی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنے متعلقہ ڈی سی آفس سے رابطہ کریں یا پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر اطلاع دیں۔ مونسون کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر بھی سختی سے عمل کریں۔ حکومت پنجاب۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کو ہدایت کی ہے کہ وزارت کے مجوزہ منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اسلام آباد میں وزارت کے نئے منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے دوران مقامی طور پر حفاظتی کٹس، وینٹیلیٹرز اور دیگر سامان کی تیاری قابل ستائش کاوش تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی سائنس و ٹیکنالوجی کے فروغ سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے منصوبوں کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے تاکہ ان پر عمل درآمد شروع کیا جا سکے۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے طبی آلات کی تیاری میں ملکی استعداد اور اس حوالے سے برآمدات میں اضافے سے متعلق مجوزہ منصوبہ وزیر اعظم کو پیش کیا۔ انہوں نے زراعت کے شعبے کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے اور زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق بھی تفصیلی پلان وزیر اعظم کو پیش کیا۔
वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत की गुज़श्ता 2 साला कारकर्दगी और शुरू किए जाने वाले अहम मंसूबों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में इंजीनियरिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जदीद तालीम के हवाले से मुजवज़ा यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से मंसूबे पर भी होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में साफ पानी की फराहमी के प्लांट्स और खुसूसन इस मंसूबे के जरिए नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार की फराहमी के हवाले से मुजवज़ा मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में आज़ाद कश्मीर से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को इब्तदाई तौर पर 2 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई। ECC को बताया गया कि निजी शोबे की जानिब से 5 लाख टन गंदम की दरामद शुरू हो चुकी है, जिससे मुल्क में गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। इजलास में निजी शोबे की जानिब से चीनी की दरामद पर आयद महसूलात की शरह में कमी लाने का भी फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने अपने ट्वीट में कहा है कि ECC ने दरामदी चीनी पर टैक्सेस में कमी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद निजी शोबे को चीनी की दरामद में सहूलत मिल सकेगी। हम्माद अजहर ने कहा कि इससे चीनी के मुल्की ज़खायर और दस्तयाबी में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 1% कर दिया गया है। हम्माद अजहर ने कहा कि टैक्सेस की कमी महदूद मुद्दत और चीनी की दरामद की मखसूस मिक़दार के लिए होगी। TCP को 1 हफ्ते में टेंडर्स और दीगर इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में काबीना कमेटी निजकारी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। CCUPOP ने 747 मेगावाट के गुद्दू पावर प्लांट की निजकारी और OGDCL में हुकूमत के 7% हिस्से के फरोख्त की मंजूरी दी। इजलास में PPL में हुकूमत के 10% हिस्से समेत पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी के 20% हिस्से फरोख्त करने की भी मंजूरी दी गई। कमेटी ने सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक के लिए ट्रांजैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मंजूरी दी। पाकिस्तानी मईशत बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन। S&P नामी अमरीकी रेटिंग एजेंसी ने भी पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल को बेहतर करार दे दिया है। S&P के मुताबिक माली और मुआशी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने ठोस पेशरफ्त की है। कोरोना वबा ने पाकिस्तान के पहले से कमजोर मुआशी ढांचे पर मजीद दबाव डाला। आलमी सतह पर वबा के नीचे आते ही पाकिस्तानी मईशत बतदरीज बेहतर होती जाएगी। इससे पहले 2 आलमी इदारे मूडीज और फिच भी पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करार दे चुके हैं। कोविड-19 के सबब लॉकडाउन के मनफी असरात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के मईशत के हवाले से किए गए फैसलों से मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन रही और मुख्तलिफ शोबों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तेजी से तरक्की हुई। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे ज़िशान अहमद खान इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के इकदामात और वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात कम से कम पड़े। मुल्क की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर की सतह को अबूर कर गए, जबकि माशी अशारे भी मस्बत नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल की जुलाई के मुकाबले में रवा माली साल की जुलाई के महीने में 6% बरामदात में, जबकि सीमेंट की फरोख्त में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सब्जियों और फलों की बरामदात से 73 करोड़ डॉलर का कीमती ज़र मुबादला हासिल हुआ है। मईशत में बेहतरी का सबूत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी है, जो कि सिर्फ मार्च के महीने में 47% रही, जबकि जुलाई के महीने में 17% रही। कोरोना वायरस के नुकसानात के बावजूद मार्केट ने 40,000 की सतह को अबूर किया और जुलाई के ही महीने में बेहतरीन कारोबारी हजम की सतह को बरकरार रखते हुए दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शामिल हुई। रवा माली साल जुलाई के महीने में 8% टैक्स FBR के रेवेन्यू में इजाफा हुआ, जबकि यूरिया खाद 22% और DAP खाद की सेल्स 29% रही। मज़बूत पॉलिसी का एतराफ न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि गैर मुल्की सतह पर किया जा रहा है और मूडीज ने मुल्क में तरक्की और इस्तेहकाम को देखते हुए पाकिस्तान की रेटिंग B3 कर दी है। फिच इंटरनेशनल, S&P इंटरनेशनल अमेरिका की बहुत बड़ी रेटिंग कंपनी है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो जाएगी आने वाले वक्तों में। रवा माली साल के पहले महीने में तिजारती खसारा पिछले माली साल के मुकाबले में 10.2% कम रहा, जबकि माली खसारा 9.1% की तवक्को से कम होकर 8.1% रहा। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज से सऊदी सफीर नवाब सईद अल मालकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की।
وفاقی وزیر نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات ہمیشہ کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں، تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس موقع پر دونوں اطراف نے میڈیا اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو تقویت دینے پر اتفاق کیا۔ مسلمان مشاہیر کی زندگی، ان کی کامیابیوں اور اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے والے پروگرامز کی تیاری پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ سعودی عرب پہلا ملک تھا جس کا وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا۔ سعودی عرب وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کے اظہار اور حمایت کے لیے سب سے آگے رہا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کی تدفین بلوچستان کے ضلع خزدار میں آبائی قبرستان میں کر دی گئی۔ نماز جنازہ سابق MNA مولانا قمر الدین نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزراء، سابق وزیر اعلیٰ، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، علماء کرام، مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیداران، قبائلی عمائدین سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم سینیٹر حاصل خان بزنجو کو ان کے والد میر غوث بخش بزنجو کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کو ان کی سیاسی، پارلیمانی، ملک اور جمہوریت کے لیے خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شریم زاری اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہر یار خان آفریدی نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو حق اور سچ کی بات کرنے والے سیاستدان تھے۔ انہوں نے اپنے عوام اور صوبے کی محرومیوں کی بات ضرور کی، لیکن پاکستان اور پاکستانیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے اسٹرانگلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن ایک جمہوری طریقہ کار سے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو پورا ایک پرسونا تھا وہ یہ جمہوری تھا، جمہوریت کے لیے لڑتے تھے اور جمہوری طریقے سے لڑتے تھے۔ میر حاصل خان بزنجو صاحب نے وہ تمام ایریاز جس نے بلوچستان کو اور چھوٹے صوبوں کو مختلف طریقوں سے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ ضرور کرتے تھے، لیکن وہ پاکستان پہ اور پاکستانیت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہیں۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف اور پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو ایک بڑے آدمی کے بیٹے اور خود بھی بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی روایات کو برقرار رکھا۔ پاکستان میں اصولوں کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساری عمر جو ہے جمہوریت کی بقا کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، عدم تشدد کے حامی تھے، معتدل مزاج قومی پرست لیڈر تھے بلوچستان کے۔ آج بلوچستان کے ماحول میں اس قسم کی سوچ کے قائدین، اس قسم کی سوچ کے سیاسی رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ بہت ہی صفات کے مالک تھے، سیاسی شخصیت کے اثرات جو تھے وہ پورے ملک پہ مرتب ہوتے تھے۔ پاکستان ایک بہترین سیاسی ورکر، ایک بہترین سیاستدان، ایک بہترین پارلیمنٹیرین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو پاکستان کی بڑی سیاسی شخصیت تھے۔ بزنجو صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے پالیٹکس میں۔ وہ جس بھی پوزیشن پہ رہے ہیں اس نے اپنے عوام کی خدمت، اپنے لوگوں کے لیے ایک بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ ارکان اسمبلی اسلم بوتانی، غوث بخش مہر، شکور شاہ، سید محمود شاہ، آغا حسن بلوچ، صابر حسین قائم خانی، محسن داوڑ اور رمیش کمار نے بھی میر حاصل خان بزنجو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو نے ساری عمر جمہوریت کی بقا کے لیے جدوجہد کی۔ ملک اعلیٰ شخصیت اور اصول پسند سیاستدان سے محروم ہو گیا ہے۔ اجلاس میں سینیٹر میر حاصل خان بزنجو اور ملک بھر میں مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کی وفات پر تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر راجہ ظفر الحق نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ میر حاصل خان بزنجو نے ملکی سیاست میں انتہائی متحرک کردار ادا کیا۔ وہ جمہوریت پسند، تجربہ کار سیاستدان اور قومی سطح کے لیڈر تھے۔
وہ عسکریت پسندی کے خلاف اور سیاسی جدوجہد پر یقین رکھنے والے رہنما تھے۔ میر حاصل خان بزنجو کی وفات پر سینٹ کا ماحول سوگوار رہا۔ ارکان نے ان کی وفات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو کے ساتھ ملکی سیاست کے ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہے۔ وہ بلوچستان کے پسماندہ طبقات کی آواز تھے۔ میر حاصل خان بزنجو کی ملک میں جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کی کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس بروز پیر شام 5 بجے تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ وزارت صحت سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے کھلنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹرپرینیورشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے، کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے۔ حکومت کی تعلیمی شعبے میں 2 سالہ کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ یکساں تعلیمی نصاب کے لیے کاوشیں، غیر مسلم طلباء کے نصاب، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے وظائف اور کرونا وائرس وبا کے دوران ٹیلی اسکول کے ذریعے طلباء کے لیے تعلیم کا بندوبست موجودہ حکومت کے اہم کارنامے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کے باعث برطانیہ نے کیمبرج کے پاکستانی طلباء کے نمبروں کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ 13 مارچ کو سکولز بند ہوئے اور ہم نے 7 اپریل کو جو ہمارا ٹیلی اسکول تھا اس کا اجرا کر دیا۔ کیمبرج نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے 2 گریڈ جو ہیں وہ کم کر دی گئی۔ میں نے بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ رزلٹ جو ہیں یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، کہ ہماری جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور یہ ہوا کہ کیمبرج نے اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا۔ 1 سے 5ویں تک یکساں تعلیمی نصاب بن گیا ہے، یہ مشاورت سے بنا ہے۔ اپریل 2021 میں ایک ہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آئندہ کچھ عرصے میں ملک بھر میں طلباء کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت کو یقینی بنایا جائے گا۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، دنیا میں نام کمانا چاہتا تھا، اسی لیے کی سخت محنت اور اپنی مٹی کو دی ہمیشہ اہمیت۔ پھر بات چاہے فصل کی ہو یا کھیل کی، صحیح وقت پر صحیح داؤ لگا اور سامنے والے کو چت کر دو۔ اسی لیے دھان کی فصل کے لیے میرا مشورہ ہے سنجنٹا کی دانے دار ورٹاکو، جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی۔ ورٹاکو سے چاول کا ہر دانہ دفانہ۔ بریک کے بعد آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ اور جنوبی پنجاب میں علیحدہ صوبے کے قیام کی طرف اہم پیش رفت، عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ریکارڈ قانون سازی پنجاب حکومت کی کارکردگی کے نمایاں خدوخال ہیں۔ مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے معین سلطان۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ عالمی میڈیا نے بھی سراہا ہے۔ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ وہاں پر اناؤنس کیا ہم نے، اور اللہ پاک کے کرم سے اس سیکریٹریٹ پراپر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ لے رہا ہے۔ وہاں پر ہم نے پولیس کا اور آپ کے سول جناب سیکریٹریٹ بنا کر وہاں پہ چیف سیکرٹری کا ایک نمائندہ، پولیس کا ایک نمائندہ جو 100% آئی جی اور چیف سیکرٹری کے اختیارات رکھتا ہوگا اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا، اور اب 16 ڈپارٹمنٹ پہلے مرحلے پہ وہاں پر ان کے سیکرٹریز ایڈیشنل سیکرٹریز ایز اے سیکرٹری جناب وہاں پہ کام کریں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں میں پنجاب کابینہ کے 34 اجلاس ہوئے جن میں پنجاب لیبر پالیسی، واٹر پالیسی، اسپیشل ایجوکیشن پالیسی سمیت متعدد اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی نے ان 2 برسوں کے دوران مجموعی طور پر 58 بل اور 28
ऑर्डिनेंस मंजूर किए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि लाहौर में रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट जैसा मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे सूबे में माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। सेहत के शोबे का जिक्र करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि खुद को अवाम का खादमे आला कहने वाले नाम नेहाद रहनुमा सूबे को कोई एक भी नया अस्पताल ना दे सके, जबकि बुज़दार हुकूमत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 12 नए अस्पताल कायम कर रही है। मोइन सुल्तान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ की सियासत पर असरअंदाज हो रही है। जिनके नैब में केस हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। ML1 मंसूबे से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जितने लोग बोल रहे हैं टीवी पे, ये सब वो हैं जिनके नैब में केस हैं। नैब में केस के अलावा जो बंदा बोले तो आप समझें कि इसके बात को वजन है। बाकी सारे अपने केस NRO, और इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, NRO नहीं देगा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबे के तमाम शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के ऐलान पर सूबाई हुकूमत को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये इकदाम फलाही रियासत की जानिब अहम कदम है। सेहत व इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम तरीन जुज़्व है। दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करने के हवाले से आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद दहशतगर्दी के शिकार अफराद को याद रखना और उन्हें खराज अकीदत पेश करना है। उन अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया में आज मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का शिकार होने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 85,000 अफराद दहशतगर्दी का शिकार हुए। दहशतगर्दी के शिकार अफराद को खराज अकीदत पेश करने के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मुआविन खुसूसी ने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामयाबियों को तस्लीम करना है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर में लोगों ने बीजेपी के एक लीडर की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और इंतहा पसंद हिंदुओं की गुंडागर्दी के खिलाफ श्रीनगर और दीगर इलाकों में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुजाहरों की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी थी। नमाज जुमा के फौरन बाद बड़ी तादाद में लोग श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा, इस्लामाबाद, शोपियां, कोलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और दीगर इलाकों में सड़कों पर निकल आए और बीजेपी लीडर सतपाल शर्मा के गुस्ताखाना बयान और RSS के गुंडों की तरफ से 2 मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे किए और रैलियां निकाली। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद और आज़ादी के हक में और भारत के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते जैसे नारे दर्ज थे। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम आपको आगाह करेंगे। जी नाज़रीन, अब एक हस्ती के जिक्र से दिलों को जगमगाते हैं जिनके कबूल इस्लाम की दुआ खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। खलीफा दौम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इसी बारे में देखते हैं ज़िशान अहमद खान की ये रिपोर्ट। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनके दायरा इस्लाम में शमूलियत के लिए दुआ खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु को दुआ रसूल भी कहा जाता है। के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाते ही पहली दफा मुसलमानों ने नमाज एलानिया तौर पर अदा की। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के लिए जुर्रत व बहादुरी, फतुहात और शानदार कारनामों से इस्लाम का रोशन चेहरा जिस अंदाज में पेश किया, इसकी दुनिया कुफ्र भी मोतरफ है। कबूल इस्लाम के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु की मशावरत को अहमियत दी जाती थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। आपका ज़माने खिलाफत इस्लामी फतुहात का दौर था। आपके दौरे हुकूमत में इंसाफ का बोलबाला था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदीद फलाही रियासत की बुनियाद रखी। आपने बैतुल माल का शोबा फाल किया और पहली बार शीरख्वार बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसरों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। इस्लामी मुमलिकत को इंतजामी लिहाज से सूबों और जिलों में तकसीम किया, पुलिस का महकमा कायम किया और काजियों के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की।
आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्दमशुमारी की बुनियाद डाली, सन हिजरी जारी किया और ज़राअत की तरक्की के लिए नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की मोहर पर लिखा था कि उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। हजरत उमर फारूक दीन इस्लाम का वो रोशन सितारा और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ख्वाहिश पर पर्दे के अहकामात समेत कुरान मजीद की मुतादिद आयतें भी नाजिल हुई। कैसर और कसरा की बादशाहत को खत्म करने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज के दौरान अबू लौलो फिरोज नामी मजूसी ने जहर आलूद खंजर से शदीद जख्मी कर दिया, जबकि यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को आप रजी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफन किया गया। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में फिरका वाराना हम आहंगी के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का किरदार हमेशा से काबिल कदर रहा है। लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी की खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत पंजाब मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि असलहा, लाउड स्पीकर, वॉल चॉकिंग और फिरका वाराना मवाद की नशो इशात पर पाबंदी के कानून पर मौसर अंदाज में अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आला ने कोरोना SOPs की जरूरत पर भी जोर दिया। लाहौर में जिले इंतजामिया की जानिब से मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान 15,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार फराइज अंजाम देंगे। तफसील से आगाह करेंगे वसीम सज्जाद। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें उलमाए कराम और जाकिर हजरात अपने खुतबात में फलसफा शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आले पाक पर ढाए जाने वाले मजालिम और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नवासा रसूल और उनके रुफ़काए कारों की कुर्बानियों को मौजू बनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पैगम्बर इस्लाम ने भी इशार फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिनकी तहरीक सिर्फ उसका ताल्लुक इराक तक महदूद नहीं था, कोफा वालों तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए तहरीक थी। ऐसे में इमाम बारगाहों और दीगर जगहों पर मजालिस में आने वाले अज़ादारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सूबाई और जिलाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर शहर में 5,000 से जायद मजालिस और तकरीबन 600 अज़ादारी जलूस होंगे। इमाम बारगाहों और जलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि मजालिस और जलूसों के रूट्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हमारी कोई 5200 के करीब मजालिस है इसे एक महीने में, 5,200 650 हमारे टोटल प्रोसेशंस हैं जो लाहौर पुलिस ने इसे एक महीने में जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। यकम मुहर्रम से यौम अशूर तक पुलिस के साथ साथ डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट, रेस्क्यू टीमें, फायर ब्रिगेड, मोबाइल डिस्पेंसरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए शहर में महकमा पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से IG रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान ने लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर IG रेलवे ने कहा कि रेलवे मुसाफिरों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि रेलवे हदूद में आने वाली मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़िया के सरबराह आगा सैयद हामिद अली मूसवी ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाब्ता अज़ादारी के निकात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अवाम दुश्मनाने दीन व वतन पर कड़ी नजर रखें और चौकन्ना रहें। आगा हामिद मूसवी ने कहा कि दूसरों के अकायद व नजरियात में दखल अंदाजी न की जाए और अपने नजरियात पर कायम रहकर शहदाए करबला को नजराना अक़ीदत पेश किया जाए। आगा हामिद मूसवी ने कहा कि उलमाए कराम, वाइज़ीन और ज़ाकिरीन उख़ुवत और यगांगत को पेश नजर रखें, अकायद व नजरियात को मुस्बत अंदाज में पेश करें और किसी की दिलाजारी न करें। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि कराची में मॉनसून की बारिश के बाद कुछ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसील जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से। दोपहर से लेकर वक्फे से होने वाली बारिश के बायस कराची की अहम शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और सड़कों के टूटा फूटा होने के बायस लोगों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पे रोड पे खड़े हुए हैं,
हुकूमत कुछ देख भी नहीं रही। यहाँ पे पानी इतना जमा हुआ है कि लोग बहुत परेशान हैं। देखें ट्रैफिक कितनी है। बारिश में तो वैसे सबको मजा आ रहा है, लेकिन रहमत किसी के लिए रहमत बन गई है। बहुत ज्यादा पानी है, केडिया पूरा भरा पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में हुई, जो कि 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जिससे सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। मानसून के नए सिस्टम के तहत बारिशों का ये सिलसिला भारतीय इलाके राजस्थान में मौजूद हवा के कम दबाव का असर सिंध में दाखिल होने की वजह से है। इस सिस्टम के जेर असर सूबे भर में पीर तक वक्फे से बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नॉर्थ कराची में 88, नॉर्थ नाजिमाबाद में 85.6 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 77, PAF मसरूर बेस में 44.5, सादी टाउन में 28.5, लांढी में 20.5, जिना एयरपोर्ट पर 18 मिलीमीटर, सदर में 16 मिलीमीटर, PAF फैसल पर 14 मिलीमीटर, जबकि केमाड़ी में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बदीन, ठट्ठा और सहराए थर से मिट्टी, डेपलो और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। आगे बढ़े और आपको आगाह करें, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इस दौरान सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 44, तालबंदीन 43 और तुर्बत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि विभाग के वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि टिड्डी दल के हमले से फसलों को बचाने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। बलूचिस्तान की तरह थरपारकर में भी टिड्डी दल का खात्मे के लिए मुश्तरका काम किया जा रहा है। थरपारकर में इजलास से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए चीन ने 5 ड्रोन जहाज फराहम किए। विफाकी वज़ीर ने इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन में पाक फौज के ताउन को सराहा और कहा कि टिड्डी दल के खिलाफ कामयाबी तमाम इदारों के बाहमी ताउन की बेहतरीन मिसाल है। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से कमी आ रही है। अब तक मुल्क में 2,73,579 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 11,790 रह गई है। कोरोना वायरस के बायस चमन में पाक अफगान बॉर्डर 6 माह की मुसलसल बंदिश के बाद 2 तरफा पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चमन बाब-ए-दोस्ती पर कानूनी दस्तावेजात चेक करने के बाद आने जाने की इजाजत दी जा रही है। सरहद से 2 तरफा तिजारत का सिलसिला भी बहाल है। माल से भरे ट्रक भी सरहद उबूर कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद 2,29,25,000 से ज्यादा अफराद में से 1,55,71,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। 7,98,000 अफराद वबा के खिलाफ जिंदगी की बाजी हार गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 65,54,000 तक महदूद है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कराची में ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के नए सेटअप का इफ्तिताह किया। सेंटर आमद पर कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। सेंटर का मकसद मुल्की खुसूसी इक्तसादी जोन में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरतब करना है। ये सेंटर मकामी तौर पर तैयार करदा ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की सहूलियात से आरास्ता है। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की ये सहूलत मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर तेज तरीन राबते और ताउन को यकीनी बनाएंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 2 माह में गैर कानूनी मकीनों से सरकारी घरों को खाली कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस की समाअत करते हुए रहायशगाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख करके मामला कानून के मुताबिक हल करने का हुक्म दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। अदालत ने जेल हुकाम को हमजा शहबाज समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान को भी आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया है। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान से वाइस चांसलर मीर जाकिर खान यूनिवर्सिटी सिब्बी डॉक्टर अली नवाज रिंद ने मुलाकात की और यूनिवर्सिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि यह हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि आला तालीमी इदारों में तालीमी मयार को ऊंचा करने और अकेडमिया और मार्केट के दरमियान समाजी जरूरियात के मुताबिक इश्तराक पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएं।
फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस के दरमियान रोड सेफ्टी एजुकेशन और ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुफाहमती दस्तावेज पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, पार्लिमानी सेक्रेटरी वजीहा अकरम, IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद करीम इमाम भी मौजूद थे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि NHMP हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है जिस पर हमें फख्र है। मुआहदे के तहत नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस तलबा और असातिज़ा को ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम करेगा। वज़ीर दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल से तुर्क कंपनी स्पॉट के CEM और ऑस्ले एक्टिंग ने रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ओवरसीज और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल बैंकिंग की सहूलत का आगाज कर रही है, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को अकाउंट खोलने और बराह रास्त सरमायाकारी में सहूलत होगी। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान नासिर सलमान से मुलाकात में सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि कोरोना बहरान में माशी सरगर्मियों के लिए तामीराती इंडस्ट्री के बाद सियाहती मकामात को खोल दिया गया है। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से नामवर सनतकार फरहत सहगल और रोमान सहगल ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत हाल और इसमें बिजनेस कम्युनिटी के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना वबा से मुल्क की मईशत पर असरात मुरतब हुए, ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बरवक्त और कामयाब हिकमत अमली के जरिए मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिली। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रही है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए सिंध के जिला घोटकी में गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। कुएं की खुदाई का अमल रवां साल जुलाई में मुकम्मल हुआ। जखीरे से यौमिया 3.1 मिलियन क्यूबिक फुट गैस हासिल हो सकेगी, जिससे मुल्क की तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। खेलों खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। फैसला कुन मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इब्तिदा में पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग की वजह से इंग्लैंड की टीम दबाव में नजर आई। 127 के स्कोर पर इंग्लैंड के 4 बैट्समैन आउट हो चुके थे। रॉरी बर्न्स 6, डॉम सिबले 22, जो रूट 29 और ओली पॉप 3 रन बना सके। इस मौके पर जैक क्रॉले और जॉस बटलर के दरमियान पार्टनरशिप ने इंग्लिश टीम की पोजीशन को बेहतर किया। जैक क्रॉले ने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। मैच के लिए पाकिस्तान ने टीम में कोई तब्दीली नहीं की और दूसरे टेस्ट वाली टीम को ही मैदान में उतारा गया। इंग्लिश टीम में फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान ने 17 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। खिलाड़ियों में बाबर आजम कप्तान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, हैदर अली, इमाद वसीम और शाहीन शाफरी शामिल हैं। हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, नसीम शाह और वहाब रियाज भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के बाद 3 मैचेस की T20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के मैचेस 28 और 30 अगस्त के अलावा 1 सितंबर को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होंगे। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन, नाजिया कमल और हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। जब भी अगस्त का महीना आता है, कश्मीरी कौम के जख्मों को कुरेद जाता है। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक और तहजीब व शाइस्तगी का ढंडोरा पीटने वाले दुनिया की सबसे मजबूर और मकहूर कौम के जख्मों का मदावा करते। जारह का रास्ता रोका जाता
اور कुर्रे अर्ज पर बसने वाले बेकसों और मजबूरों को तसल्ली होती कि पहली और दूसरी आलमगीर जंग के कबल के हालात से आलमी इक्तदार वालों ने सबक सीखा है, लेकिन हीफ सदहीफ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंसाफ, सदाकत और रास्तबाजी की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया। अगस्त यानी बंटवारे का महीना भी गुजर जाता है, ईदैन गुजरती हैं, लेकिन कश्मीर की गलियां और बाजार मुसलसल लहू लुहान रहते हैं। नोहे और सिसकियां राज करती हैं। हर अखलाकी और इंसानी ज़ाब्ता पामाल होता है और भारतीय बर्बरियत के पंजे सितम को कोई रोकने वाला नहीं होता। They are actually hiding a dark Hindu fantasy of destroying Kashmiri Muslims and reducing them to a minuscule minority so that they can always rule them and they will be enslaved. कश्मीर की तहरीक आज़ादी तो एक मंतकी अंजाम के करीब है। 72 बरस की ये जिद्दोजहद अब भारत के रूबरू ताजियाना बनी खड़ी है और भारतीय हुक्मरान भी जान गए हैं कि अब उनकी फौज जितना भी जुल्म करेगी, तहरीक आज़ादी उतना ही करीब आएगी। ये 2 और 2 4 की तरह खुले तौर पर देखा जा सकता है कि अगर 8 लाख फौज झोंकने, इंसानियत सोच कवानीन बनाने और नाजी दौर के हथकंडे इख्तियार करने के बावजूद कश्मीर की जमीनी सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? आपने कश्मीर का वैसे ही बुरा हाल कर दिया है, पूरे स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए हैं, यूनियन टेरिटरी बना दी है, पॉलिटिकल प्रोसेस खत्म कर दी है। 70-80 लाख लोगों के लिए आपने 9 लाख वहाँ पे फौजी और पुलिस लगा रखी है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कश्मीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप। लोग अब खुलेआम भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे हैं। अलहदगी के ये जज्बात अब खुलेआम पंजाब, आसाम और मिजोरम वगैरह में देखे जा सकते हैं। 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी था। भारतीय पंजाब में इसे यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। सिख रहनुमाओं का कहना था कि बंटवारा हमारे लिए आज़ादी नहीं लाया, बल्कि हम एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में चले गए हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ इंडियन लीडरशिप। उन्होंने कश्मीर, नक्सल और दीगर इलाकों का खास तौर पर जिक्र किया। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਦਬਾਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਰਰ ਟੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਟਾਡਾ ਕੋਟਾ ਤੇ UAPA 1967 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ, ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। कश्मीर तो भारत के मरकजी धारे से तबका दूर, बहुत दूर जा चुका। अब दीगर इलाकों में भी वही कुछ होने जा रहा है। राष्ट्रीय सेवक संघ के नजरिए की हुकूमत सिर्फ जुल्म से सबको फतह करना चाहती है और नतीजा सबके सामने है। तारीख यही बताती है कि जिस तरह से मुंह जोर घोड़ा गहरी खाई में गिरता है, मुंहजोर नजरियात भी जल्दी मर जाते हैं। दूसरी बात ये कि भारत कौन होता है कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला, इसका हक सिर्फ वहां के वासियों को है और यही हकीकत है। खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए।
ये हैं फजलदीन और गांव में मशहूर हैं फजलदीन टॉप क्लास के नाम से, क्योंकि ये अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं एमी स्टार टॉप, जो रखता है धान की फसल को हर किस्म की बीमारियों से महफूज और देता है टॉप क्लास फसल। सिंजेंटा का एमी स्टार टॉप किसान का है ये नया सवेरा पर ही दस्तयाब है। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स और शराकतदार, दोनों मुल्क खित्ते में अमन तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक कम्युनिटी की हैसियत से ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का अहम हिस्सा पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए बेहद अहम है। चीन के सदर शी जिनपिंग का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम खत। चीन के सूबे हेनान में पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर, कोरोना वायरस से निमट